A very good morning to my dear students. Today we are going to start our tense part from the grammar portion. Tenses are much of the common part from the grammar section. So we are going to cover the first thing, that is present tense. Present tense means Vartaman Kal. Now let's start our video and let us know what is tense and what is the present tense to our students. Now here we are going to refer. Tense refers to the time of action. Time of action means काल का क्रिया, काल की क्रिया. So the present tense will cover the all things which just happened now. Okay, now it will not happen in the past, neither it happen in the future, but it has happened now. That will cover throughout the present tense. So the tenses will grouped into three kinds: present tense, past tense, and the future tense. As we all know that there are three kinds of tenses are there: present, past, and future. But in this video we will cover only about the present tense and its kinds. Now here we have some of the following passage which we will read out and we will come to know what kind of present tense and what are the identification of a present tense. I will make it Hindi of this paragraph for you, so that you will find some of the relatable things and you will find some identification so that you can identify the present tense in your daily life. So here is the paragraph says, Aditi generally gets up 6 o'clock in the morning, right? Aditi generally सुबह के 6 बजे उठ जाती है. But today she has got up around 5 o'clock because it's the first day of her final exam. लेकिन आज वो 5 बजे उठी है क्योंकि ये उसके फाइनल एग्जाम का फर्स्ट डे है. She is revising the difficult questions she has already marked in her notebook. अब वो क्या दोहरा रही है? वो दोहरा रही है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस जो उसने ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं अपने नोटबुक में. इट इज़ नाउ 6 o'clock, अब 6 बज चुके हैं. एंड शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, अब वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है. All the activities mentioned in the passage indicate the present times. Now you have to find out what kind of the identification you has come out. In the first line, the last word of the Hindi sentence is ती. Aditi generally 6 बजे उठ जाती है. See the ती. This is the identification of present indefinite. ता है, ते है, ती है. Right? ये पहचान है present indefinite की. In the second sentence, ये कहता है आज वह 5 बजे उठी है, यानी वो आज 5 बजे ही उठ चुकी है, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चुका है, चुके हैं, चुकी हैं. दीज आर द आइडेंटिफिकेशन और द पहचान ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट डे ऑफ हर फाइनल एग्जामिनेशन, क्योंकि आज वो कौन सा दिन है? उसके फाइनल एग्जाम का फर्स्ट पेपर है आज. तो शी इज़ रिवाइजिंग, अब वो दोहरा रही है. अब वो दोहरा रही है, जो रही है, रहा है, रहे हैं, ये पहचान किसकी होती है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की. सो हमें इस सेंटेंस से पता चलता है कि ये कौन से लाइन, ये लाइन कौन से सेंटेंस से है, कौन से टेंस से है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से. ना जो लास्ट लाइन है, इट अब 6 बज चुके हैं, इट इज़ नाउ 6 o'clock, अब 6 बज चुके हैं, तो ये कहाँ से है? इट इज़ आल्सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड शी इज़ गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, और वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है. अगेन रहा है, रहे है, रही है, जिस भी टेंस के हिंदी के लास्ट में आए देन इट विल बी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. और आई विल टेल द आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश इन द फर्दर video. Okay, now just keep yourself tuned with the video so that you will not miss the everything which is confined in Hindi. Also as well we will do it in the English. Now let's start. These are the forms of present tense. There are 4 parts, subparts of present tense, because present is also a part of tense. Tense has the part 3 part, that is present, past, and future. And present has another subpart, that is simple present tense, and present continuous, present perfect continuous. Fourth one is present perfect continuous tense. So let's read about each form of present tense in detail. Now let's see. First of all, we will cover the simple present tense. We will come out through the uses of this in our daily life. So let me give you the simple things. Simple present tense is also called the present indefinite. Remember this. These are the same thing whenever you call present simple tense or you call present indefinite tense. Right? These are the these two things are the same thing. So now let's start
the usage of the simple present tense. First thing here refers to talk about the action of the activities of normal routine. अगर हम अपनी नॉर्मल रूटीन की कोई भी एक्टिविटी एक्शन के बारे में कोई बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं? देन वी विल यूज़ द प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अंकिता लिव्स फॉर स्कूल एट 6 AM. अंकिता अपने स्कूल के लिए 6:30 बजे निकल जाती है. अगर मैं बात करूँ फर्स्ट अपने पहले पैराग्राफ की, तो यहाँ सबसे पहले जो लाइन है, जो सबसे पहली सेंटेंस है, उसमें जो कवरेज हो रही है वो किस चीज़ की कवरेज हो रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की है. फॉर एग्जाम्पल, अदिति गेट्स रेडी अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी वो 6 बजे तैयार हो जाती है. तो जो हमारे आइडेंटिफिकेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की वो है that we will find all these things related to the identification in Hindi as well as English. Now, it is also used to express the scientific facts और द यूनिवर्सल ट्रूथ. जो भी सच्चाई होती है जिसे हम बदल नहीं सकते हैं, हम उसके लिए भी प्रेजेंट टेंस अपना यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हियर सेज वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो सच हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते हैं, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड द सन सेट्स इन द वेस्ट. राइट, हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या है, इसमें हम हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. इन प्रोवर्ब्स विच आर कंसिडर यूनिवर्सल ट्रूथ. एक्चुअली कई बार हम ऐसे प्रोवर्ब्स यूज़ करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ की ही तरह कंसिडर की जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल से मॉर्निंग शोज द डे. अब वो कहते हैं ना, सुबह ही बता देती है कि पूरा दिन कैसा जाएगा. तो ये कुछ ऐसे प्रोवर्ब्स हैं, कुछ ऐसी कहावतें हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, जो सच होती हैं. सो हम इनमें भी किस चीज़ का यूज़ करेंगे? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का. सो हियर इज द फोर्थ पॉइंट विच सेज टू एक्सप्रेस नेचुरल क्वालिटीज़ और प्रोसेस एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज़. ये क्या चीज़ होती है? जब भी हम कोई प्रोसेस किसी भी मतलब कोई नेचुरल क्वालिटी है किसी में भी जैसे कि एक मदर की केयरिंग होती है, वो हमेशा एक नेचुरल क्वालिटी है मदर की. सो ऐसे बहुत सारी क्वालिटीज़ होते हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, जिनके प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल, अ मदर लुक्स आफ्टर हर बेबी वेल. एक माँ ही अपने बेटे की अच्छी देखभाल करती है. तो क्या है यहाँ पे, एक माँ हमेशा क्या करती है? अच्छी देखभाल करती है बेबी की, यानी कि अपने बच्चे की. ए डॉक्टर ट्रीट्स सिक पीपल. एक डॉक्टर ही है जो किसका इलाज कर सकता है? अपने जो बीमार मरीज है जो उनके पास आते हैं वही कर सकता है, कोई मैकेनिक तो नहीं कर सकता. तो ये वो प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है जो इनके अलावा और कोई नहीं कर सकता. सो ये एक यूनिवर्सली प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ है जिनमें हम चेंज नहीं कर सकते. दैट्स वाई हियर वी यूज़ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Now here another use is that in exclamatory sentences beginning with here or there. अगर कोई भी exclamatory यानी कि जिसमें हम अपने sudden emotions दिखाते हैं, उसमें एकदम से अगर here and there was come in the beginning, अगर शुरुआत में here and there आपको मिलता है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हम simple present tense को. For example, here comes the most intelligent student of our class. अगर हम जैसे कहते हैं कि हमारे साथ हैं सबसे आपकी क्लास का सबसे मोस्ट इंटेलिजेंट बच्चा, तो मैं कहूँगी हियर कम्स द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज देयर वेट्स फॉर द क्राउड फॉर द लीडर. नाउ अगर मुझे किसी को कहना है कि यहाँ जो है जो लीडर है उसका जो पूरी हमारी जनता है वो वेट करती है, तो देयर वेट्स यानी मीन्स यहाँ पर वेट कर रही हैं हमारी जनता. सो हियर इन इज द सिक्स यूज दैट इन ए न्यूज़ पेपर हेडलाइन. अगर हेडलाइन होगी तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगी, भले ही वो चीज़ बैक की हो सकती है इन अंडर द यू कैन से न्यूज़, बट विद द हेडलाइंस होंगी वो किस में होंगी? प्रेजेंट टेंस में. अ ब्रिज कोलैप्स ड्यू टू द अर्थक्वेक. अब जो ब्रिज है वो कोलैप्सेस हुआ है, यानी कि उनमें टकराव हो गया है, किसकी वजह से? अर्थक्वेक की वजह से. विराट कोहली हिट्स हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी. आपने कभी पढ़ा होगा कि आपने जैसे विराट कोहली ने कोई सेंचुरी लगाई है तो वो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर में हमेशा लिखा आएगा, हाँ, विराट कोहली हिट्स हिज फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी वट एवर बी द नेम ऑफ क्रिकेटर. सो जो हेडलाइंस होंगी न्यूज़पेपर की वो क्या होंगी? हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होंगी. 7 क्या है? टू एक्सप्रेस ए फ्यूचर इवेंट ऑलरेडी प्लान्ड. एक ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी प्लान हो चुकी है फ्यूचर के लिए, उसे भी हम किस में एक्सप्रेस करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जैसे माई फादर लिव्स फॉर द लंडन टुमारो. मेरे पिताजी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि वो कल जाएंगे, तो आई विल से माई फादर लिव्स फॉर लंडन टुमारो. तो मैं यही कहूँगा कि भाई मेरे फादर जो है वो कल लंदन के लिए
जाएंगे, यानी कि है तो यहाँ पे फ्यूचर, बट उसके लिए जो हिंदी बनेगी वो यहाँ पर बन रहेगी माई फादर लीव्स, यानी कि वो छोड़ते हैं, यानी कि वो रवाना होते हैं, रवाना हो रहे हैं किस चीज़ के लिए, लंदन के लिए कल। राइट हमारे पास पहले से एक ऐसा इवेंट है जो ऑलरेडी प्लान्ड है, जिसे हम एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट इन सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, नाउ in condition clause when the verb of main clause is in the simple future. In the clause we have just already been learned कि कोई भी मेन क्लोज अगर सिंपल फ्यूचर में हो तो हम उसे नेक्स्ट जो होंगे वो ऑब्वियसली हम क्या यूज़ करेंगे, उससे पहले जो यू कैन से कंडीशन क्लोज होगा वो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। फॉर एग्जाम्पल हियर से इफ़ यू कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते हो, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी डेफिनेटली हेल्प करूँगा। तो ये देखिए हमारे पास जो मेन यू कैन से कंडीशनल क्लोज है, कंडीशनल क्लोज इज दिस, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, मेन क्लोज इज जस्ट सिंपल फ्यूचर। सो इन द टाइम क्लोज का मतलब होता है जहाँ आपका टाइम रेफरेंस में हो। फॉर एग्जाम्पल एज सुन एज है टाइम क्लोज का कंजक्शन वेयर विल यूज एज द ट्रेन अराइव्स, जैसे ही ट्रेन जो है वो आती है, यू शुड बी रेडी फॉर द बोर्ड इट, तुम्हें इसमें चढ़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें यानी कि जैसे ही ट्रेन आती है जल्दी से भाग के चढ़ जाते हैं। वो हम जब एक यू कैन से पर्सनली एक एक्सपीरियंस है हम सभी का, जब हम जनरली कहते हैं जैसे ही बस आती है जल्दी से चढ़ जाते हैं, तो एवरीवन विल स्टैंड अप व्हेन द प्रिंसिपल अराइव्स, सभी खड़े हो जाते हैं जब प्रिंसिपल आते हैं। नाउ ही इज द 10th ऑफ द यूसेज इन विच ही सेज इन द रनिंग कमेंट्रीज। आपने बहुत सारे मैचेस में देखा होगा, या फिर जो यू कैन से लाइव कमेंट्रीज देते हैं या कमेंट्रीज होती हैं, जो जैसे हियर सेज विराट कोहली ड्राइव्स द बॉल एट द मिड ऑन एंड टेक्स 2 क्विक रन्स। उन्होंने मिड में ही बॉल को क्या है ड्राइव कर दिया और जल्दी से 2 रन भागकर ले लिए, यानी कि जैसे ही विराट कोहली ड्राइव करते हैं बॉल को मिड में, वैसे ही उनके 2 रन पूरे हो जाते हैं, यानी वो अपनी 2 रन पूरे करने के लिए बीच में ड्राइव करते हैं। तो ये बात कमेंट्रीज में से बोली जाती है। राइट, so these are some of the uses of this very tense, that is present simple tense. Now let's move towards the syntax क्या चीज़ होती है, syntax होती है द सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से बना होता है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन सब चीज़ों से क्या बना होता है हमारा सिंटैक्स। तो सिंटैक्स सिंपल प्रेजेंट का जो है वो कैसे होता है, लेट्स सी। हियर से सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारे पास सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट आई विल टेल यू। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में मेनली ही, शी, इट आते हैं, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे आते हैं। सो यहाँ जो हम यूज़ करने वाले हैं एस या ई एस, एस एंड ई एस विल ऑलवेज फॉलो द सिंगुलर नाउन। तो जो सिंगुलर प्रोनाउन होगा हमारे पास, जैसे ही है, शी है, उनके साथ जो वर्ब लगेगी उस वर्ब में हमेशा आपको एस या ई एस पक्का मिलेगा। तो लेट्स सी, यह एग्जांपल देखते हैं किसके साथ मिलता है किसके साथ नहीं। ही बेक्स अ केक फॉर मी, वह मेरे लिए केक बनाता है। यहाँ एस या ई एस का उपयोग हुआ है ही के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है, केक फॉर मी। सब्जेक्ट क्या था, ही, वर्ब प्लस एस या ई एस इज बेक्स, बेक क्या है, वर्ब है, इसका मतलब होता है पकाना, और केक फॉर मी इज द ऑब्जेक्ट। ना मैंने बात की थी प्लूरल प्रोनाउंस की, जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं हम उनमें एस या एस का यूज़ नहीं करते। नाउ जस्ट सी, दे लिसन टू अस केयरफुली, वो हमें बड़े गौर से सुनते हैं। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, अगर यहाँ ही होता, ही लिसन्स टू मी केयरफुली, वो मुझे बड़े ध्यान से सुनता है, तो यहाँ क्या हो जाता, लिसन्स आ जाता ना। अगर यहाँ पे प्लूरल क्वांटिटी है तो हमारे पास क्या आएगा, लिसन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ये हमारा रूल था, सिंटैक्स था। अब नेगेटिव के लिए पढ़ लेते हैं कौन सा सिंटैक्स यूज़ होगा। नेगेटिव सिंटैक्स के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज, यहाँ हमारे यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आ जाते हैं, डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये भी हमारा रूल उन्हीं के साथ यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्रोनाउन एज वेल एज द प्लूरल प्रोनाउन। सो यहाँ पे जो बात है वो मैं बताती हूँ आपको कि शी के साथ क्या यूज़ होगा, और दे और आई वी यू दे के साथ क्या यूज़ होगा। ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा डज यूज़ होगा,
और जो हमारे पास प्लूरल होगा जैसे आई वी यू दे, उनके साथ डू होगा। सो नेगेटिव में डज नॉट एंड डू नॉट यूज़ होता है, तो हम डज नॉट यूज़ करते हैं ही शी और इट के साथ, एंड वी आर यूजिंग डू नॉट विद द प्लूरल क्वांटिटीज. सो नाउ लेट्स सी हियर, ही इज द सब्जेक्ट, सिंटेक्स हैज बीन गिवन that subject plus do does plus not plus verb third form plus object, right? Subject is she, do does मैंने बता दिया है कि आपके साथ she के साथ हमेशा does not ही आएगा, does not. Verb first form, work is the first form of the verb and in the blank is the object, right? Now we are moving towards the example of plural quantity. यहाँ plural है हमारे पास we do not like horror movies. हम क्या पसंद नहीं करते, horror movies पसंद नहीं करते. हमारे पास subject क्या है यहाँ पे we, do not यहाँ पे क्या है, यू कैन से डू नॉट जो हमारा व्हाट वी कैन कॉल इट ऑक्सिलरी वर्ब है. सो नोट हमारे पास यहाँ नेगेटिव को साइन कर रहा है एंड लाइक द हॉरर मूवीज मीन्स द ऑब्जेक्ट. सो लाइक यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हॉरर मूवीज हमारा ऑब्जेक्ट है. नाउ लेट्स सी द इंटरोगेटिव सिंटेक्स. इंटरोगेटिव सिंटेक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ है डू डज, यहाँ स्टार्टिंग में यानी कि बिगिनिंग में डू डज आ जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है. इंटरोगेटिव में जनरली क्वेश्चंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंटेक्स में दिया गया है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट. ये डू डज जो है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होते हैं. मैं बता चुकी हूँ सिंगुलर के साथ डज यूज होता है, प्लूरल के साथ डू यूज होता है. तो यहाँ जो डज यूज हो रहा है दैट मीन्स नेक्स्ट क्वालिटी जो हमारे पास प्रोनाउन है वो सिंगुलर होगा. डज ही कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स फर्स्ट फॉर्म. हिज वर्क, हिज वर्क मीन्स ऑब्जेक्ट. डज देखिए यहाँ पे हमने यूज किया सिंटेक्स को एज इट इज डू डज, यहाँ पे डज यूज किया है एंड सब्जेक्ट क्या है हमारा ही, वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या है कंप्लीट एंड ऑब्जेक्ट क्या है हिज होमवर्क. नाउ वी विल गो फॉर द प्लूरल वन. प्लूरल हमारी क्वांटिटी क्या है दे. यहाँ डू जो है वो स्टार्टिंग में लगा है बिकॉज दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस प्लस यू कैन से सब्जेक्ट विच इज दे. वर्क इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड हार्ड इज द ऑब्जेक्ट. Now this is all about the thing and we will put the question mark in the end of interrogative. Now we will come towards the negative interrogative. Negative interrogative will say the syntax do and does will come in the beginning like the interrogative, but we will combine these two sentences in a one. So here we get the negative interrogative. Do does plus subject plus not plus was first form plus object, right? We will use do and does according to the subject. So does he not play, हमने यहाँ यूज किया था does in the beginning, does has been come, subject is he, not has been given like this and verb first form is play, play is first form of the play, so object is chess well and in the last there will be a kind of interrogative sign. So हमें यहाँ we have completed the syntax of the negative interrogative with the singular pronoun. But now let's move towards the plural one. Here we have the plural quantity in which we will use do. Just see here, यहाँ do does then subject then not था. यहाँ पे भी हमारे पास क्या है do जो हमारी प्लूरल क्वांटिटी के साथ आता है, यू हमारी प्लूरल क्वांटिटी है एंड जो प्रोनाउंस है वो हमारा प्लूरल है. उसके बाद हमने नोट लगाया. देन प्रेफर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन कॉफी टू द टी. इट मीन्स हम चाय पसंद करते हैं, आई मीन हम कॉफ़ी पसंद करते हैं बजाय कि चाय. तो हम यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं पूरा सिंटेक्स विद द रेफरेंस ऑफ लास्ट इंटरोगेटिव साइन इन द एंड. सो हियर इज ऑल अबाउट द सिंटेक्स ऑफ प्रेजेंट indefinite tense. Here is some of the things which you have to note it down. We use do not with I, you. We use do not, हम you do not use करते हैं I we you they के साथ, एक plural noun के साथ. And we use does not with he she and a singular noun. Yes, मैं आपको बता चुकी हूँ ये सारी चीज़ें, आप इसको नोट डाउन कीजिए और you will come across the indefinite things and you will not find yourself so much confusing related to anything because this slide and this video will cover the full present tense. Now let's move towards the next, that is present continuous. Present continuous means the tense presents the ongoing activities, यानी कि जो activities हो रही हों. Okay, now we use the present continuous tense. फर्स्ट एग्जाम्पल है हम फर्स्ट यूसेज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कि कोई बंदा जैसे कोई बात बोल रहा है, हम बोलते बोलते एक एक्शन भी हो रहा है साथ में, तो हम उस चीज़ के लिए भी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल शी इज़ शॉपिंग इन द साकेत मॉल, वो शॉपिंग कर रही है कहाँ पे, शॉपिंग मॉल में. इट इज़ रेनिंग एट आवर प्लेस, क्या है,
हमारे जगह यानी हमारी जहाँ स्थान है, हमारे वहाँ क्या हो रही है, बारिश हो रही है। सेकंड पॉइंट जो है वो रेफर करता है टू एक्सप्रेस एन एक्शंस गोइंग ऑन दिस डेज, कोई भी एक्शन जो आजकल हो रहा है, यानी कि आजकल जो ट्रेंडिंग में है। सो क्या है, हाउ आर इट मे गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, चाहे भले ही वो एक टाइम के लिए, पीरियड के लिए हो, लेकिन वो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज प्लेइंग अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन द ओडीआई सीरीज। अब ओडीआई सीरीज जो है वो क्रिकेट लवर्स अच्छे से जानते होंगे। सो विराट कोहली इसमें कह रहे हैं कि विराट कोहली किसके अगेंस्ट खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका के, लेकिन वो हमेशा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो नहीं खेलते। सो ये कुछ एक्शंस होते हैं जो फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, तो उनको दर्शाने के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाउ हियर इज द थर्ड पॉइंट सेज टू एक्सप्रेस द डेफिनेट प्लान दैट इज टू बी एग्जीक्यूट इन नियर फ्यूचर। अब अगर हम जल्दी कोई कोई ऐसी बात करते हैं जो हमें फ्यूचर के बारे में बता रही हो। फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग ऑन मंडे। प्राइम मिनिस्टर हैं जो मंडे को आ रहे हैं, यानी कि आज हम चाहे सैटरडे को बात कर रहे हैं, संडे को बात कर रहे हैं, और बात किस दिन की कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यानी मंडे की बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर कब आ रहे हैं, मंडे को आ रहे हैं। सो यहाँ हमें जो यूसेज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस के, वी हैव जस्ट डन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सिंटैक्स। सिंटैक्स में आपको बता चुकी हूँ, ये होता है वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, किस रेगुलेशन के साथ होता है, उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। और जनरली जिस फॉर्मूला से जो सेंटेंस बना होता है वो सिंटैक्स कहलाता है। नाउ सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हिंदी में बात करें तो इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है। इफ आई विल से इन द English, then it will contain subject plus is am are plus first form plus ing plus object. You have to see this very syntax, then you will confirm that it is the sentence of present continuous tense. ये हम अफर्मेटिव के लिए सिंटेक्स यूज कर रहे हैं, जहाँ हम ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, फॉर्मूला यूज करते हैं। हियर से शी इज निटिंग अ स्वेटर। यहाँ जो इज एम आर हैं वो भी अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर एंड प्लूरल क्वांटिटी के साथ यूज होते हैं। यहाँ जैसे दिया गया है, वी यूज ही शी इट हैंड ए सिंगुलर नाउन। इज को हम किसके साथ यूज करते हैं, ही शी इट, और एक सिंगुलर नाउन के साथ या कोई नेम हो। एम को या जो यूज करते हैं वो आई के साथ, सिर्फ आई के साथ, और आर को यूज करते हैं यू वी एंड दे के साथ, जो कि प्लूरल नाउन्स होते हैं। रिमेंबर दिस। तो यहाँ देखिए, शी इज निटिंग ए स्वेटर, वो एक स्वेटर बुन रही है। दे आर प्रैक्टिसाइजिंग द हार्ड फॉर द ओलंपिक गेम्स, वो क्या कर रहे हैं, ओलंपिक गेम्स के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिसिंग, आई एम सॉरी, प्रैक्टिसाइजिंग इज नॉट हियर, दिस इज द प्रैक्टिसिंग। सो हियर आई एम रीडिंग अ नॉवल, मैं एक बुक या नॉवल पढ़ रहा हूँ। तो जहाँ रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं, और प्लस द सिंटेक्स, द फॉर्मूला ऑफ सिंटेक्स हैज बीन फॉलोड एज सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, देन यू विल कंक्लूड दैट इट इज द अफर्मेटिव सेंटेंसेज ऑफ द present continuous tense. Now let's move towards the negative ones of the present continuous. Here the negative sentence says, the syntax, yeah, spelling of syntax is wrong here. Syntax for the negative is subject plus is mr plus not here given. Not is always will for the negative tense. Negative of the check किसी का भी हो उसमें नोट जरूर मिलेगा, वह फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। देन शी इज़ नॉट हेल्पिंग अस, वो हमारी हेल्प नहीं कर रही है। क्या हमने इस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग हमने यूज़ किया, देखते हैं। सब्जेक्ट कहाँ है हमारा, सब्जेक्ट क्या है हमारा, शी। इज़ हमने यूज़ किया, कोई हेल्पिंग वर्ब जो हमने यूज़ की वो है इज। क्यों, हमारे पास शी जो था एक सिंगुलर जो था वो एक नाउन था, इसलिए हमने इज इसके साथ यूज़ किया है। देन हैव यू यूज द नॉट, येस वी हैव यूज द नॉट हियर। एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, हेल्प एक फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने क्या लगाया है, आई एन जी लगाया है, एंड ऑब्जेक्ट हमारी क्या है, आस। नाउ हम इसी का एग्जांपल देख लेते हैं प्लूरल में। वी आर नॉट कोऑपरेटिंग विद दैम, हम उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो वी क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इंटरोगेटिव ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Here the syntax is MR. Now in this type in the type of interrogative, generally the modals or auxiliary verbs or you can say helping verbs will come in the beginning. तो beginning में जो आ रहे हैं वो is MR plus subject plus verb form plus object, right? यहाँ इस सेंटेंस में देखते हैं कि क्या हम अपने सेंटेक्स को जो है फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। Is he working in your factory? क्या हमने सेंटेंस को फॉलो किया, कि हमने सबसे पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब लगाया, येस वी हैव जस्ट डन द इज, हमने इज लगाया है। देन सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, हाँ, येस वी हैव पुट द ही हियर।
वर्क फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, कि हमने वर्क के साथ आईएनजी लगाया, यस वी हैव जस्ट पुट द आईएनजी विद वर्क एंड ऑब्जेक्ट विल बी इन योर फैक्ट्री एंड एट द लास्ट देयर विल बी द क्वेश्चन मार्क, राइट। सो ये हमारा सिंटेक्स है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। तो हम अगर इसको हिंदी में बना के देखें तो ये बनेगा, क्या वह तुम्हारे फैक्ट्री में काम कर रहा है तो आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन मार्क भी है, राइट। सो आप इसको हिंदी में बना के देखें और साथ में इंग्लिश में बना के देखें, ताकि ये आपकी रिवीजन के लिए काफ़ी सिंपल हो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेगेटिव और इंटरोगेटिव। नेगेटिव और इंटरोगेटिव मैं पहले बता चुकी हूँ, नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों को मिलाकर बना होता है। इसमें इंटरोगेटिव का साइन होता है, जिसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब बिगिनिंग में शुरू हो जाती हैं, और इसमें हम सब्जेक्ट के बाद हमेशा नोट लगाते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। हैव यू पुट द सिंटैक्स this sentence according to the syntax, that is yes is there. Now have you put the subject after the helping verb? Yes, we put the subject is she here. And have you put the note after that? Yes, we have put the note after she. And have you given the ing form of verb first form के साथ हमने ये ing यूज़ किया है, teaching. And you properly means the object and last the question mark. And this is all about the present continuous. Now let's move towards the next slide and come to know some noted point. अब हम किसी चीज़ के बारे में ये जानना चाहें कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके साथ हम कभी भी कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ हम आईएनजी लगाकर बात नहीं करते हैं, तो हम इस तरीके से उन बातों को भी पढ़ेंगे जो हैं तो कॉन्टिन्यूअस में ही, लेकिन आईएनजी के साथ यूज नहीं हो रही हैं। सम वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। कुछ कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नॉर्मली कुछ वर्ब्स हैं वो यूज़ नहीं हो रही हैं। अ लिस्ट ऑफ सच वर्ब्स कुछ ऐसी होती हैं जिसमें हम कभी भी यूज़ नहीं करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। वो है अडोर, एग्री, अप्रिशिएट, बिलीव, बिलोंग, केयर, कंसर्न, कंसिस्ट, कंटेन, डिज़ायर, डिसलाइक, फियर, फॉरगिव, फॉरगेट, हेट, हियर, नो, लाइक, लव, मैटर, मीन, माइंड, नीड, नोटिस, पोसेस, रियलाइज, रिकॉग्नाइज, ऑन, रिफ्यूज़, remember, see, seem, signify, smell, suppose, think, opinion, understand, want, wish। ये कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिनका हम कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम कभी ये नहीं कह सकते दैट आई एम हियरिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, बल्कि हम इसको सिंपली यही कहेंगे, आई हियर यू लाउड एंड क्लियर, मैं तुम्हें सुन पा रहा हूँ लाउड और क्लियर, ठीक है। यानी कि ये है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की तरह जो साउंड कर रहा है, बट इट विल नॉट कंटेन द आईएनजी इन द एंड। सो रिमेंबर एंड नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आप नहीं देखेंगे, और अगर आपको कभी कोई बोल दे कि इन वर्ड्स में से मतलब ये वर्ड यूज़ करके कोई सेंटेंस बनाइए, देन यू विल नॉट पुट द आईएनजी आफ्टर दिस, ओके। Now let's move towards this is all about the present continuous tense. Let's move towards the present perfect tense now. Here's the present perfect tense. Present perfect tense means in which the action that started sometime in the past. कुछ तो स्टार्टेड होती है, जो एक्शन होते हैं वो हमारे पास में स्टार्ट होते हैं, बट उनका इफेक्ट अभी तक चल रहा होता है, प्रेजेंट तक चल रहा होता है। जैसे कि हम बात करें एग्जाम्पल के थ्रू, इनके पहले यूसेज देख लेते हैं। बट बिफोर इफ़ यू वांट देन आई विल गिव द एग्जाम्पल। आई हैव जस्ट कुक्ड फूड फॉर देम। मैं उनके लिए खाना पका चुकी हूँ, यानी कि मैंने खाना बनाना तो पास्ट में शुरू किया था, अब मैं उनके लिए पका चुकी हूँ, राइट। तो एक एक्टिविटी हमने पास्ट में शुरू की जो अभी भी चल रही होती है, वही हमें प्रेजेंट परफेक्ट को डिनोट करती है। नाउ लेट्स सी द uses ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द फर्स्ट पॉइंट हियर सेज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज वेरी रिसेंटली कंप्लीटेड। एक ऐसा एक्शन जो अभी भी कंप्लीट हुआ है, यानी कि आप खाना खा चुके हो, यानी कि अभी भी आपने खाना खाया ही है। वी ऑफ्टन यूज द एडवर्बियल जस्ट इन द केस। हम इसमें कुछ एडवर्बियल चीज़ें यूज़ करते हैं। लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल। हियर इट सेज आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच। मैंने अभी अभी अपना लंच जो है वो फिनिश किया है, या फिर मैं कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ चुका है, चुके है, चुकी ही नहीं, या ये जो पीछे फैमिलियर से यू कैन से साउंड है, ये भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। या फिर जैसे मैं यहाँ कहूँ आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई लंच, मैं अपना लंच फिनिश कर चुका हूँ, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया है, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने अपना लंच फिनिश कर लिया, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है। अगर मैं कहूँ कर लिया है, देन इट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिमेंबर दिस डिफरेंस बिटवीन द पास्ट टेंस आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ हियर द चैनल हैज जस्ट फ्लैश्ड दिस न्यूज़।
अभी अभी जो है, जो अभी अभी रिसेंटली हुआ है वो ये है कि चैनल ने अभी अभी इस न्यूज़ को फ्लैश किया, यानी कि दिखाया है। सो यहाँ पे दो तरीके का फ्लैश हो सकता है। इट मे बी फ्लैश लाइक एकदम से हाईलाइट किया हो। सो हम ये इस चीज़ कह सकते हैं कि जो चीज़ अभी रिसेंटली हुई है और हम उसे बताना चाहते हो तो किस टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। So here the second option, second point, it says that to express an action that started in the past and still continuing. Yes, वही चीज़ जो past में हुई थी और अभी भी चल रही है. For example, she had taught in the school for 10 years. वो इस स्कूल में 10 साल पढ़ा चुकी है, यानी कि वो अभी भी पढ़ा रही है. She started teaching 10 years ago and still teaching. वो अभी भी पढ़ा रही है, वो पढ़ा भी चुकी है, यानी कि वो अभी तक इस स्कूल में है. They have been ill since Monday. वो क्या है? I think this is the example of this is the example of present perfect continuous, so we will not do this, but we generally found that मैं अगर बात करूं दैट वो पिछले कई सालों से यहाँ है और वो अपना काम अच्छे से कर चुकी हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो अभी भी वहीं हैं और अभी भी वो सर्टेनली काम कर रही हैं. यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो नोट करने के लायक हैं. लेट्स सी, हम यहाँ बात करते हैं वी यूज़ फोर. I don't think so this is the correct thing. So we will do this to be noted at the time of present perfect continuous, right? So हम इसे present perfect continuous के टाइम पे करेंगे क्योंकि हमारे पास for और since का यूज़ वहीं आता है. We will not do in this slide, so do not write it down. So the third point says to express an action that took place in the past but whose effect can be felt at the moment. The same thing has said here कि I have just cooked for them. मैंने उनके लिए खाना पका चुकी हूँ, यानी जो फूड है वो पहले ही पक चुका है और मैं अभी आराम से बैठी हूँ, राइट? सो मैं उनके लिए पहले ही खाना पका चुकी हूँ. शी हैज़ प्रिपेयर्ड फॉर हर एग्ज़ाम. वो अपने एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर चुकी है. यहाँ देखते हैं फोर्थ पॉइंट. इन द इफ़, अगर हम बात करें इस सेंटेंस में, अगर इफ़ और वैन होते हैं क्लोज की तरफ, यानी कि क्लोज अगर आपको इफ़ और वैन मिले, वैन द मेन क्लोज रेफर्स टू द फ्यूचर. जैसे कि क्लोज में दो सेंटेंस होते हैं ना, जिसमें हम फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, कंडीशन प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं, एंड देन द सबॉर्डिनेट क्लोज विल बी देयर. सो मेन क्लोज विल बी द प्रिंसिपल होता है, जो मेन क्लोज होता है वो प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है अगर वो फ्यूचर को रेफर कर रहा हो, राइट? हम हमेशा क्लोज को दो हिस्सों में डिलीवर करते हैं, वो कंजक्शन के थ्रू किसी चीज़ से जुड़ते हैं. यहाँ जो है, अगर हमारे पास कंजक्शन है इफ़ और व्हेन, अगर वो हमारे सेंटेंस में है तो देखते हैं कि हमारा क्लोज जो प्रिंसिपल में है और फ्यूचर टेंस को डिनोट कर रहा है, तो हम किस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे. नाउ जस्ट सी हियर, इफ़ यू हैव डिपॉजिटेड द फी. अगर आप अपनी जो फ़ी है वो डिपॉजिट कर सकते हैं तो आप अपने स्कूल में अपनी क्लास में जा सकते हैं. जैसे आपकी जनरली स्कूल फ़ीस के लिए लेकर भी कहा जाता है कि प्लीज़ इस बात को इग्नोर करें अगर आप अपनी फ़ीस जमा करा चुके हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हम तभी यूज़ करेंगे जब आप अपने तभी जा पाएंगे, यानी कि फ्यूचर का एक आ गया हमारे पास, एक सेंटेंस आ गया, आप तभी अपने स्कूल में या क्लास में जा सकते हैं या फिर जाएंगे जब आप अपनी फीस जमा करा देंगे, राइट? हमारी सेंस क्या बन रही है, एक फ्यूचर की, एंड देन वन इज़ प्रेजेंट. फ्यूचर में आप अपनी क्लास में जा पाएंगे अगर आपने अभी जो है वो फ़ी जो है वो दे दी है या फिर आपने जमा करा दी है. नाउ लेट्स सी, हियर इज़ टू बी नोटेड सम ऑफ द थिंग्स. कुछ चीज़ें हैं जो नोट डाउन करने के लिए है यहाँ पे. हियर इज़ समथिंग दैट present perfect doesn't take past time adverbial and like yesterday, last week, last month, etc. सो हम क्या यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. आई हैव विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक. ओके, हम जैसे कभी भी अगर मैं बात करूँ कि सेंटेंस में कभी लास्ट वीक आ जाता है, तो लास्ट वीक के साथ हम कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ नहीं करते. कभी भी येस्टरडे, लास्ट वीक या फिर मंथ के का कोई भी रेफरेंस किसी सेंटेंस में आ जाए तो हम वहाँ क्या यूज़ नहीं करते, हैव, हैज़ यूज़ नहीं करते. और यहाँ देखते हैं कि उसको एग्जैक्ट तरीके से लिखते कैसे हैं. अगर हमारे पास लास्ट वीक में है दैट मीन्स वो पास्ट टेंस में हो गया. देन जो रियल सेंटेंस बनेगा वो होगा आई विजिटेड द ताजमहल लास्ट वीक. तो पिछले हफ्ते में कहाँ गया, ताजमहल मैंने विजिट किया. नाउ राइट, सो यहाँ कुछ चीज़ें हैं. तो यहाँ पे हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं जब हमारे पास के भी लास्ट वीक या yesterday या मंथ होता है, राइट? सो however we can use the following adverbial with the present perfect tense to connect the undefined past with the present. For example, already, recently, lately, yet not, yet so far, never, before, before now, ever, ever,
today, this week, this year, this morning to night, in the last few days, in the past few months, in the recent week, etc. अगर ये सारी चीज़ें होती हैं then what you will get. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो पास्ट टेंस के साथ कुछ कनेक्ट होता है प्रेजेंट का, तो हम उसमें दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हियर, ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट येट. उसने अभी तक अपना जो प्रोजेक्ट है वो सबमिट नहीं कराया. यानी कि वो प्रोजेक्ट क्या था, वो बहुत मतलब उनको पास्ट में दिया था. प्रोजेक्ट कहाँ दिया था, पास्ट में दिया था, लेकिन वो अभी तक वो सबमिट नहीं करा चुके. यानी कि अभी तक उन्होंने सबमिट नहीं कराया है. मैंने आपको बताया था अगर हिंदी में भी कराया है, कराई है, ई है, आ है, ए है, अगर हम पीछे है, ए है, ई है, आ है लगा दें तो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या है वो पहचान होती है. सो इस तरीके से यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इंडिया हैज़ अचीव्ड मच प्रोग्रेस इन रिसेंट ईयर. कुछ ही सालों में यू कैन से इंडिया ने बहुत अच्छी अचीवमेंट इन प्रोग्रेस जो है वो हासिल की है. राइट. तो यहाँ क्या है, जो प्रोग्रेस थी वो बहुत पहले से चल रही थी, लेकिन अब जो अचीवमेंट है वो प्रेजेंट में अचीव की है. तो यही चीज़ कह रहे हैं. अगर आपको ऐसे सेंटेंसेस कभी भी किसी भी यू कैन से सेंटेंस में मिले तो वहाँ हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होगा, बिकॉज उसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक ऐसा अनडिफाइंड पास्ट टाइम होता है जो प्रेजेंट आज जो है हमें दिखा रहा होता है. जैसे कि यहाँ रिसेंट ईयर है, वो रिसेंट ईयर में प्रोग्रेशन अचीव की है, लेकिन जो प्रोग्रेस थी वो कौन सी ईयर में चल रही थी, वो अनडिफाइंड है. यानी वो पास्ट में भले ही चल रही थी, वो अनडिफाइंड है. राइट. जैसे इसने फर्स्ट में कहा था ही हैज़ नॉट सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट. अब वो प्रोजेक्ट कब दिया था, ये तो पास्ट टेंस की बात हो गई है, लेकिन उसने सबमिटेड अभी तक नहीं किया है, ये प्रेजेंट की बात हो गई है. तो ऐसा कोई भी आपको वर्ड दिखाई दे किसी भी टेंस में या फिर सेंटेंस में, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि ये कौन सा टेंस है. यू कैन से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So now is the third one to be noted is that present perfect tense is not used in a question beginning with the when. कभी भी हम क्या है जो क्वेश्चन जो भी कभी भी जो when से बिगनिंग होता है हम उसमें कभी भी यूज़ नहीं करते. उसके साथ कभी भी यूज़ नहीं होता हमारा present perfect tense. Present perfect tense is not used in the questions beginning with the when. Now just see, when have you joined the स्कूल. तुमने कब ज्वाइन स्कूल किया था. तुम ये नहीं कहोगे कि तुमने कब ज्वाइन कर चुके थे या फिर चुके हो, ये तो नहीं कहोगे. आप हिंदी बना के देखिए. व्हेन हैव यू ज्वाइंड आवर स्कूल. तुमने हमारा स्कूल कब ज्वाइन कर चुके थे, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना. दिस इज नॉट द सेंस. राइट. सो हम कहेंगे व्हेन डिड यू ज्वाइन आवर स्कूल. तुमने हमारा स्कूल जो है वो कब ज्वाइन किया. राइट. ये हमारा सही होगा, क्योंकि हम कभी भी व्हेन जो होगा वो हमेशा पास्ट को दिखाता है और हम इसमें हमेशा पास्ट टेंस को ही प्रेफर करते हैं. तो ये कुछ चीज़ें थी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट ऑफ द सिंटैक्स. ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ नोटेड डाउन चीज़ें थी जो हम अब नेक्स्ट में उसका सिंटैक्स करने वाले हैं. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स. अगर हम अफर्मेटिव के बारे में बात करें तो यहाँ हमारे पास सिंटैक्स है सब्जेक्ट प्लस हैज़ ऑफ प्लस वाज थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, चाहे वो टेंसेस किसी भी टेंस का हो, आई मीन सेंटेंस किसी भी टेंस का हो, चाहे वो प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का हो, तो जो परफेक्ट टेंस होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तो उसमें हमेशा वर्ब्स थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होती है. और हम अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव सिंटैक्स की. तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव लगता है. यानी कि हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर नाउन और द प्लूरल नाउन. ही, शी, इट और नेम के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज़. एंड आई, वी, यू, दे, दीज आर द प्लूरल नाउन, इनके साथ क्या लगता है, हैव. और हमेशा वर्ब्स की थर्ड फॉर्म विल बी प्रेफर इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लेट्स मूव स्टार्ट. here either we have used the syntax in the right manner or not. हम चेक करते हैं कि हमारा सिंटेक्स हमने राइट मैनर में यूज़ किया है या नहीं किया है अफर्मेटिव में. शी हैज़ टॉप्ड द क्लास. वह क्लास को टॉप कर चुकी है. शी यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है. देन हैज़ इज द हेल्पिंग वर्ब. देन टॉप्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ टॉप. राइट. द क्लास इज द ऑब्जेक्ट. नाउ हियर इज द प्लूरल प्रोनाउन. आई हैव टेकन. येस, हमने कहा था शी और ही शी इट के साथ हैज़ आता है. आई, वी, यू, दे के साथ हमेशा हैव आता है. यहाँ देखिए हैव हमने लगाया. येस, वी हैव जस्ट पुट द हैव विद द प्लूरल नाउन. आई हैव टेकन लीव फॉर द डे. मैंने एक दिन के लिए लीव ली है, या फिर मैंने एक दिन की मैं लीव ले चुकी हूँ. राइट. सो यहाँ पे जो टेकन है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है. जो
वर्ब है वो है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म है वो है टेक, उसकी थर्ड फॉर्म हुई टेकन। सो आपको यहाँ जनरली कन्फाइन हो गया कि किस तरीके से हम वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो यूज़ करते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब and also we are using the helping verb according to the singular or plural noun. Here is the negative syntax which is just follow: subject plus has have plus not plus verbs थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, रिमेंबर दिस। सो यहाँ क्या होगा, नोट हमेशा आएगा। मैंने पिछले स्लाइड्स में भी यही कहा था कि नेगेटिव में हमेशा नोट आता है। तो हम देखते हैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग कि हमने जो सेंटेंस लिखा वो सही है। राघव हैज़ नॉट मेड एनी रन्स येट, अभी तक उसने कोई भी रन नहीं बनाए हैं, राइट। ये हमारा कौन सा सेंटेंस है जो हम अभी पढ़कर आए हैं कि एक चीज़ पास्ट टेंस में हुई है और यानी कि पास्ट टेंस में हो चुकी है, यानी वो बना रहा था, मतलब कब से बना रहा था आई डोंट नो, वो कब से खेल रहा था ये हमें नहीं पता, बट अभी तक उसने रन एक भी नहीं बनाया है, ठीक है। तो हमने अभी अभी जो नोटेड डाउन में पढ़ी थी चीज़ें वही हम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए राघव हैज़ नॉट मेड, मेड किसकी थर्ड फॉर्म है, मेक की। सो वी हैव जस्ट डन विद द सिंटेक्स ऑफ नेगेटिव। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द इंटेरोगेटिव सिंटेक्स। सिंटेक्स में हम इंटेरोगेटिव में जो भी हेल्पिंग वर्ब हमारे मिडिल में लग रहा था, अब हम उसे बिगिनिंग में लगा के उसे क्वेश्चन मार्क के साथ डिनोट करेंगे इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हमें सिंटेक्स में हमें क्या मिल रहा है, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ शी अराइव्ड फ्रॉम लंडन, लेट्स सी द एग्जांपल हियर। हैज़ शी अराइव्ड फ्रॉम द लंडन, क्या वो लंदन से वापस आ चुकी है या फिर पहुंच चुकी है। तो जो हमने क्वेश्चन में बनाया तो हमारा क्वेश्चन बन रहा था क्या वह लंदन से वापस आ चुकी है। तो हम यहाँ देख चुके हैं कि हमारा सिंटेक्स है वो बिल्कुल प्रॉपर वे में है। फॉर एग्जांपल हैज़ है जो है वो हेल्पिंग वर्ब है वो बिगिनिंग में है, एंड सब्जेक्ट है वो हमारा शी है एट द टाइम ऑफ सब्जेक्ट, and on the places of verb third form here is the arrived and object is the from London, and the last here there is a question mark. So write it down with the syntax and remember all the syntax. Do not get confused any kind of thing. और आपको कोई भी दिक्कत आ रही है you can contact me. Now here is the नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव दोनों ही सम्मिश्रण यानी एक साथ होते हैं। लेट्स सी now the formula, or you can the syntax of this interrogative negative sentence is has have plus subject plus not plus was third form plus object, right, and the question mark in the last. Have you just done it with the right way or not? Let's check. Has in the beginning, yes, we have just put the has and have in the beginning. So then the subject is he here, and they is the subject in the plural noun in this sentence. So note will be there after the subject. Yes, we put the note here in the note here, and was third form is finished and also the disturbed. So we have to mention that how many no, we come to know about the first, second, third form of verbs. Then we can confine this verb as the third form, as the second form, or the first form of verb. So the last is the object. Yes, the object has been given here, the project yet, and the you in your work is the object. The last sign of this very interrogative negative is the completion with the question mark. क्वेश्चन मार्क के साथ हमारा सेंटेंस है वो जो कंप्लीट हो रहा है। सो जो ये सिंटेक्स हैं, नोट इट डाउन योर नोटबुक एंड वी विल कन्फाइन अदर थिंग्स एंड वी हैव जस्ट गिवन द यूसेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Now this is the last tense of our present tense. So let's move towards present perfect continuous time. क्या होता है, अब एक ऐसा लिंक क्रिएट किया जाता है इस टेंस में जो पास्ट और प्रेजेंट मोमेंट को एक ही एक्शन के थ्रू दिखाता है, राइट। इसमें हम एक लिंक मिलता है जिसे हम पास्ट एंड प्रेजेंट मोमेंट में एक ही एक्शन के थ्रू हमें वो प्रेजेंट किया जाता है। इसका यूजेस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इन इज़ यूज, जहाँ पे हम अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है वो यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूजेस देखते हैं। फॉर एक्शन विच बिगिनस इन द पास्ट एंड कम थ्रू द प्रेजेंट मोमेंट, जो पास्ट में होकर अभी तक चलता हुआ आ रहा है और उसके साथ हमें उसका डेट या टाइम भी पता हो। प्रेजेंट परफेक्ट में भी यही था कि जो चीज़ पीछे से चली हुई आ रही है लेकिन है अभी भी हो चुकी है, राइट। लेकिन अब यहाँ क्या है, वो हो रही है। हमारे पास जो पहचान होगी वो होगी से रहा है, से रही है, से रहे हैं। और जो है इसकी सिंटैक्स होंगे वो वी विल टेल यू इन द नेक्स्ट ऑफ द रो। यहाँ जो हमारे पास यूज़ है वो है कि कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, बिगिन हुआ है एंड कम थ्रू द प्रेजेंट टेंस, वो अभी तक होता हुआ अभी तक आ रहा है। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या था, वो पास्ट से तो था ही बल्कि वो यहाँ प्रेजेंट में आके हो गया,
यानी कि हो चुका, लेकिन हमारे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वो अभी भी चल ही रहा है। नाउ जस्ट सी द एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours एट द प्लेटफॉर्म बट द ट्रेन हैजंट अराइव्ड येट। अब देखिए यहाँ है कि मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ प्लेटफॉर्म पर ही वेट कर रहा था, यानी कितने घंटे से वेट कर रहा था, टाइम पीरियड भी आ गया 2 hours, और कहाँ पे, प्लेटफॉर्म पे, अभी तक ट्रेन नहीं पहुँची है। जो लास्ट वर्ड है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो फर्स्ट टेंस है जो बट से पहले है वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सो इसमें जो सिंटेक्स है वो यूज़ हो रहा है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब्स, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। सो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं हैव बीन और हैज़ बीन। हैज़ बीन किसके साथ यूज़ हो रहा है, सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट और ही शी और नेम के साथ। एंड जो हैव बीन है वो किसके साथ यूज़ हो रहा है, वो जनरली आई वी यू दे एंड प्लूरल क्वांटिटी के साथ यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ सिंगुलर का, शी हैज़ बिन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। हमने पिछले बार पढ़ा था दैट शी हैज़ बिन टीचिंग, हमने जैसे पिछली स्लाइड में पढ़ा था, आई विल टेल यू, जहाँ मैंने ये कहा था कि हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ करते हैं। सो मैं वापस वहाँ जाऊँगी, आई विल टेल यू सिंस और फॉर किस तरीके से यूज़ करते हैं, आई विल टेल यू फर्दर देयर। सो हियर सेज शी हैज़ बिन टीचिंग, वो हमारे स्कूल में कब से पढ़ा रही है, सिंस 2010 से। यहाँ हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम है, देखिए 2010 हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए हमने सिंस का यूज़ किया है। जब भी हमारे पास कोई भी चीज़ निश्चित होती है, डेफिनेट होती है कि इसी दिन, इसी घंटे, इसी साल में उन्होंने हमारे स्कूल में टीचिंग शुरू की थी, जैसे यहाँ दिया गया है, तो 2010 जो दिया गया है 2010 वो एक डेफिनेट डेट है, तो हम इसके लिए सिंस यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ 2 hours की बात हो रही है, यानी कि कौन से 2 घंटे, आप सुबह के 2 घंटे बैठे थे, शाम के 2 घंटे बैठे थे, कब बैठे थे, दिस इज़ नॉट डेफिनाइट। ओके, यहाँ पे कोई चीज़ ना डेफिनाइट नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। नाउ आई विल टेल यू हमने कहाँ पढ़ा था ये चीज़, जहाँ मैंने आपको स्किप करके बताया था। Here it says we use for to indicate the duration on the period of time। जब हम कोई भी ऐसा टाइम पीरियड दिखाने की कोशिश करते हैं जो डेफिनेट नहीं होता, जो निश्चित नहीं होता, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें हम फॉर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 hours, 5 days, 10 years। यहाँ पे जैसे अगर हमने कोई भी सेंटेंस यूज़ किया, उसमें 2 hours यूज़ कर रहे हैं, तो 2 hours के साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे थे, कौन से 5 दिन थे, कौन से वो 10 साल थे, ऐसे ही बहुत सारे। और हम एक यू कैन से हम सिंस तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो, यानी ये करेक्ट टाइम हो, हमें पता हो कि सुबह था, रात थी, 5 बजे थे, ये सन था, ये यू कैन से इरा थी, ये सब हमें चीज़ पता हो, डेफिनेट हो, तो ये चीज़ें इनके साथ हम सिंस यूज़ करते हैं, राइट। सो ये चीज़ हमें नोट डाउन करनी थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए। नाउ सी हियर, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टू बी नोटेड ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको फर्दर जो मैंने पिछले बताया वो भी आपको यहीं नोट डाउन करना है। यहाँ देखते हैं क्या और अदर फर्दर चीज़ें क्या हैं। द फॉलोइंग वर्ब्स आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लाइक एक्सेप्ट, लर्न, होप, लाइव, और यू कैन से स्लीप, लुक, सिट, रन, स्टैंड, स्टे, टी, स्टडी, वॉक, वेट, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हमने ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अच्छे से यूज़ की हैं, राइट। अब हम इनका यूज़ यहाँ पे भी देख लेते हैं, how we can use these things into our present perfect continuous। Okay, now the I think this has been done with the I think ये हमें present continuous में लिखनी चाहिए थी, और जो last था वो हमें present continuous perfect continuous में लिखना था। So आप इसको interchange कर लीजिएगा, that we have to mention this। So now let's move to the syntax of the affirmative sentence। affirmative sentence का जो syntax है वो है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बिन, हैव बिन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। इट मीन्स अगर साइन सिंस और फॉर आया तो बाद में कोई भी टाइम पीरियड यानी टाइम ड्यूरेशन तो पक्का होगा, चाहे वो 2 दिन हो, चाहे वो 5 AM PM हो, चाहे मंडे हो, वट एवर बी दैट, देयर विल बी द ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें क्या दिखाया जाएगा, एक टाइम एक्सप्रेशन दिखाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ऋत्विक हैज़ बिन डांसिंग फॉर 2 hours। वो पिछले 2 घंटे से क्या कर रहा है, डांस ही कर रहा है। कौन? ऋत्विक। तो हमारे पास यहाँ कोई वो नहीं है, निश्चित नहीं है कि कौन से 2 घंटे से वो डांस कर रहा था। दे हैव बिन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से ही मतलब काइट्स हैं, वो जो पतंगे हैं वो उड़ा रहे हैं। तो यहाँ क्या है, मॉर्निंग, हमें पता चल रहा है कि सुबह से ही वो उड़ा रहे हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं हैव बीन और हैज़ बीन के यूसेज की। हैज़ बीन यूज़ हो रहा है नेम के साथ, यानी ही, शी और इट, यानी कि कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ।
और हैव बीन यूज़ हो रहा है कोई भी प्लूरल प्रोनाउन के साथ। नाउ जस्ट सी हियर, और सिंस और फॉर का हम यूज़ पता चल गया है कि हम फॉर यूज़ करते हैं किसी जिस चीज़ के लिए हम निश्चित नहीं हैं, डेफिनेट नहीं है, कोई भी इनडेफिनेट हमारे पास टाइम पीरियड है, और कोई डेफिनेट चीज़ है उसके लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, सिंस। नाउ इज द नेगेटिव। नेगेटिव में हम हमेशा बस नोट यूज़ करते हैं आफ्टर द यू कैन से आफ्टर हैज़ बीन, हैव बीन, वट एवर बी द helping verb was given throughout the tense. So here is the syntax is subject plus has have plus not plus been. Now यहाँ has have been के बीच में नोट आया है, remember this, आप been के बाद नोट नहीं लगाएंगे, has have और been के बीच में नोट लगाएंगे, then was first form, फिर वही हमारा सेम जो है वो चलता रहेगा, right? So if I will say some things, for the example here says she has not been studying in the school for 5 years. so वो हमारे स्कूल में पिछले 5 सालों से नहीं पढ़ रही है, राइट? नहीं पढ़ रही है तो मतलब यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंस दिखा दिया है। यू हैव बीन स्टेइंग इन द हाउस सिंस 2015। आप यहाँ 2015 से इस घर में नहीं रह रहे हैं। आपको ये चीज़ क्लियर है कि किस तरीके से हमने नेगेटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस के जो एक्सप्रेशंस हैं वो यूज़ किए हैं विद रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम हमेशा ये यूज़ करते हैं सिंस और फॉर, और सिंस और फॉर ही हमें जनरली शो करता है दैट व्हाट द दो चीज़ें हैं जो हमेशा जो है साइन अप करती हैं अबाउट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज दैट दिस हैज़ बीन, हैव बीन, एंड प्लस हियर इज द टाइम एक्सप्रेशन। उससे पहले हम यूज़ करेंगे सिंस और फॉर, रिमेंबर, और ऑब्जेक्ट के बाद ही हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस और फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेशन। रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स। Now here is the interrogative syntax of present perfect continuous. Here syntax says the helping verb will come in the beginning, and then subject plus been plus verb, first form plus ing, then object, then since for plus time expression, then the sentence will end with the question mark. Sentence किससे end होगा, question mark से, as for the example says here, he has been paying the rent for 5 months. क्या वह हैज़ ही बीन पेइंग, क्या वो पे कर रहा है रेंट पिछले 5 महीने से, राइट? क्या वो पिछले 5 महीने से रेंट है वो पे कर रहा है? एक्चुअली दिस इज़ अ क्वेश्चन, दैट्स वाई यहाँ आंसर गिवन कोई और करेगा। सो हम जो अगर सिंटेक्स यूज़ कर रहे हैं इंटरोगेटिव का, वो भी इस तरीके से जिसमें हमारे पास कोई घटना पास्ट प्लस प्रेजेंट में भी चल रही हो, तो हम उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज़ करते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सिंटैक्स। यहाँ इंटरोगेटिव एंड जिसमें मिक्स है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का। यहाँ कहते हैं हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। Sorry for my speed if I so much speed at the moment. So let's consider with the example. Has he not been applying for the job for 2 months? क्या उसने नई जॉब के लिए वो अभी अप्लाई नहीं कर रहा है? हम जनरली कहते हैं ना कि वो बहुत दिनों से अपने घर में बैठा है, तो हम जनरली पूछते हैं क्या आपका बेटा पिछले 2 महीनों से कोई जॉब नहीं तलाश रहा है? तो यही चीज़ें हैं जो हमें सिखाती हैं कि किस तरीके से हम अपने टाइम एक्सप्रेशंस को यूज़ करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम अपनी बात को कह सकते हैं। नाउ इट हैज़ बीन क्लियर टू यू एवरीथिंग हियर। नाउ each of the 4 parts of the present tense has been completed. Now this is the mind map for the present tense. So you have to note it down in your notebook, and you will find yourself so much easy with these notes and with this mind map. Now this is the ending point of your tense, present tense. Now we will meet in the next video with the past tense. Thank you. Have a nice day.